سامعین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل محمد جہانگیر اعظمی سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں کامیابی حاصل کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں کہتے ہیں ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ابھی اگلی آیت میں آپ نے پڑھا یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہی جنتی، ان کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے، اور جنت صرف انہی کو ملے گی۔ یہاں اس کا جواب ہے اس آیت میں کہ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح یعنی مکمل کامیابی حاصل کرنے والا، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ مکمل کامیابی جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو نمازی ہیں، تقویٰ گزار ہیں، انہی کو مکمل کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان ہی بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد۔ تو یہاں پر مکمل کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں، تقویٰ گزار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، یعنی کہ جو ایمان والا ہے یقیناً وہ جنت میں جائے گا، جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا، لیکن اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا تو اسے معاف فرمائے گا، سرکار شفاعت فرمائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ جب آپ انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی تک ایمان والے اور کامیاب لوگ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا، اب جو ہے کافروں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو اچھے ہیں، اچھے اور برے میں فرق کیا ہے۔ تو کہتے ہیں بے شک چونکہ ٹھنڈی کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، کافر کی پہچان ایمان والے سے ہوتی ہے، ایمان والے کی پہچان کافر سے ہوتی ہے۔ واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آپ انہیں کتنا بھی ڈرائیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا اتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لیکن ان کی قسمت میں کفر ہی ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ کس صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے بھی ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ
बुराई करते हैं, उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो बुराई छोड़ते नहीं हैं, फितनागिरी छोड़ते नहीं हैं, अपना वो फितना चालू रहते हैं। कितना भी उनको समझाओ, कितना भी उनको बताओ कि ये करना है, ऐसा लोगों में निफाक डालना, लोगों में बुराई पैदा करना, लोगों को लड़ाना, इधर उधर से भिड़ाना, सियासतबाजी करना, ये गलत बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन नहीं, वो अपनी आदत से बाज नहीं आती, क्योंकि किस्मत में बुराई ही लिखा है, उनको किस्मत में बुराई करते करते दुनिया में चले जाएंगे और अल्लाह के सख्त अज़ाब के हकदार होंगे। यह इसकी किस्मत में जो है वो करेगा। कुफ्र की तारीफ और अज़ली काफिरों को तबलीग करने का हुक्म देने की वजह कहते हैं, यहाँ दो बातें ज़हन नशीन रखें। ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार या तहकीर व इस्तिहज़ा करना कुफ्र है। जो ज़रूरियात दीन में से हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, और ज़रूरियात दीन में से है नमाज, अज़ान, इन सब चीज़ों का कुरान, ये सब क्या है ज़रूरियात। या अगर इनकार नहीं करता है, सिर्फ उसको हल्का जानता है, अगर हल्का जानता है या उसको देख करके उस पर हंसता है कि देखो ऐसे कर रहे हो, देखो ऐसे कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, तो ऐसा करना क्या है, कुफ्र है। और ज़रूरियात दीन इस्लाम के वो अहकाम हैं जिनको हर खास व आम जानते हों, जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत, अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु की नबूवत, नमाज, रोज़े, हज, जन्नत, दोज़ख, क़यामत में उठाया जाना वगैरह। आवाम से अब वो कोई ये कहे, मजाक उड़ाए, जैसे कहा जाता है कि एक दिन क़यामत आएगी, क़यामत जब कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपनी अपनी कब्र से उठ के मैदान महशर में जमा होंगे, तो कोई ये कहे कि अरे ऐसे कैसे होता है, ये तो अजीब आदमी है, मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा हो पाता है, अरे वो सड़गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे उठेगा अपनी कब्र से। ये तो सिवाय फजूल बातों के कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अल्लाह तबारक व तआला, जब हम कुछ न थे तो अल्लाह ने हमें इतना बड़ा इंसान बना दिया, और अल्लाह चाहे कुछ भी ना रहेंगे तो भी अल्लाह ताला हमें बना देगा। पानी के एक कतरे से जब अल्लाह इंसान बना सकता है, इंसान बना करके फिर इंसान जिंदा क्यों नहीं कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है वगैरह। अवाम से मुराद वो मुसलमान हैं जो उलमा के तबका में शुमार ना किए जाते हों। अवाम से मुराद वो मुसलमान हैं जो उलमा के तबका में शुमार ना किए जाते हों। जैसे कि आप लोग एक वो जब बोला जाएगा, मुखातब किया जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, अवाम। मगर उलमा की सोहबत में बैठने वाले हों और इल्मी मसाइल का ज़ौक़ रखते हों, उससे वो लोग मुराद नहीं जो दूर दराज जंगलों पहाड़ों में रहने वाले हों, जिन्हें सही कलमा पढ़ना भी ना आता हो। कि ऐसे लोगों का ज़रूरियात दीन से नावाकिफ़ होना इस दीनी ज़रूरी को गैर ज़रूरी ना कर देगा। अलबत्ता ऐसे लोगों के मुसलमान होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले ना हों और ये अक़ीदा रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है और उन सब पर इजमालन ईमान लाए हों। यानी कि इतना जानते हों कि जो कुछ भी कुरान और हदीस में है, जो कुछ भी अल्लाह का फरमान है, वो सब सच हक़ है और दुरुस्त है। नंबर 2, ईमान से महरूम कुफ़ार के बारे में मालूम होने के बावजूद उन्हें तबलीग करने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि उन पर हुज्जत पूरी हो जाए। ईमान से महरूम कुफ़ार के बारे में, यानी जो कुफ़ार लोग हैं, काफिर लोग हैं जो ईमान नहीं लाए हैं, उनको तबलीग देने की, उनको दावत देने को क्यों कहा गया है। तो कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि इसलिए दिया गया ताकि उस पर हुज्जत पूरी हो जाए, उन पर ये ना कह सके कि हमको दावत ही नहीं दी गई, हमको किसी ने बताया ही नहीं। और क़यामत के दिन उनके लिए कोई उज़्र बाकी ना रहे, ताकि वो ना कह पाए कि हमको तो कोई बताने वाला था ही नहीं। इसीलिए एक दस्तूर था पहले, अब तो जिहाद होता नहीं, लोग जिहाद पे जाते हैं, लड़ाई होती नहीं। कुफ्र और शिर्क के दरमियान आज तो क्या करते हैं लोग, हक़ व बातिल की बात आती है तो लोग बातिल का ही साथ देते हैं, डर के मारे। कोई ना कोई डर आ जाता है, कोई ना कोई वजह आ जाती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा ये काम बंद हो जाएगा, वो काम बंद हो जाएगा। जो सही बात आती है तो भी हम कुफार के साथ हो जाते हैं और हम अपना साथ छोड़ देते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान दर की ठोकरे खाता है। तारीख उठा करके देख लीजिए कि इंसान जब भी कहीं मुसलमान धोखा खाया है या शिकस्त खाया है तो अपनों ही से खाया है, गैर से नहीं खाया।
जो अपने ही अगर साथ छोड़ दे तो इंसान कितना बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो, इंसान गिर जाया करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। कोई भी मसला आए अगर हम एक होकर के लड़ेंगे तो हम हर मसाइल से निपट सकते हैं। अब ये सोच रहे कि भाई कोई आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको जाने दो, हमको क्या लेना देना है, हमको अपना देखना है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना चाहिए। एक दिन वक्त आएगा कि जिसको तुम अच्छा समझो वही जब पलट के वार करेगा तब समझ में आएगा कि नहीं अब तो ये गलत होगा। तो जिसका साथ आपने नहीं दिया है, जिसके साथ आपने धोखा किया है और ये समझा है कि नहीं अगर उसके पीछे जाएंगे तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? ये जब वो पलट करके जब वार करेगा, जिसके साथ आप गए हो, जिसको अच्छा समझे हो, तब ये होगा। जब वो नहीं आएगा तब कहोगे हमारे साथ में कोई आया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, तब पहले क्या था, जब जंग होती थी तो जब जाते थे सिपह सालार तो दावत देते थे कि आप या तो कलमा पढ़ लो या फिर जंग के लिए तैयार हो। अगर वो इस्लाम कबूल करते थे तो ठीक है, नहीं कबूल करते तो फिर जंग। तो ताकि उनकी ये वो बाकी ना रह जाए कि हमको बताया नहीं गया, हमको कहा नहीं गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूली व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हमने रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते भेजे ताकि रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ लोगों के लिए कोई उज़्र बाकी ना रहे। और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है कि ये ना कह सके कि हमको कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए अल्लाह ने पहले ही अंबिया कराम रसूलान निज़ाम को भेज करके आपको तबलीग के लिए बता दिया कि आप लोग एक अल्लाह को मानो और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। वलो अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिका मिन क़ब्लि अन नज़िल्ला व नख़ज़ा। और अगर हम उन्हें रसूल के आने से पहले किसी अजाब से हिलाक कर देते तो ज़रूर कहते, ऐ रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा। अगर हम उन्हें रसूल भेजने से पहले ही हिलाक कर देते, अजाब डाल देते, तो ये कहते कि ऐ रब तूने हमारी तरफ किसी को हिदायत के लिए क्यों नहीं भेजा, रसूल क्यों नहीं भेजा, कि हम जलील और रुसवा होने से बात को मान लेते, तो हम जलील और रुसवा ना होते। उन्हें तबलीग करने से एक फ़ायदा ये भी हासिल हुआ कि वो अगरचे ईमान नहीं लाए लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें तबलीग करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। अगरचे हम किसी को अच्छी बात सिखाते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, किसी को तो भले से अगर वो इंसान ना माने लेकिन आपको अच्छी बात बताने का उसे आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा जो है अच्छा मशवरा देना चाहिए और किसी को हिदायत का रास्ता दिखाना चाहिए। ये नहीं कि फंसाने वाला काम करना चाहिए। आजकल तो इतना ही ऐसे ही होता है, इसमें बहुत मज़ा आता है ना। लोग ये समझते हैं फंसा दो जाते दो झेलता रहेगा अपना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ज़्यादा फंसाने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह फंसाएगा तो फिर निकल नहीं पाओगे। इंसान के फंसाने से तो इंसान कभी ना कभी इधर से उधर निकल जाता है, लेकिन जब अल्लाह फंसाएगा तो फिर कोई निकल नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह से डरो और याद करो कि एक न एक दिन कोई ऐसा मौका आएगा कि हम भी फंसेंगे। तबलीग करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। तो लिहाजा अगर आपको अच्छी बात कोई मालूम होती है, आप अच्छी बात जानते हैं, तो अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाओ। सरकार की हदीस है बल्लिग़ हुमा, सरकार के हदीस के एक लफ्ज़ है बल्लिग़ हुमा, जो तुम तक पहुँचा उसको दूसरों तक पहुँचाओ। अगरचे वो अमल करे या ना करे, अमल करेगा तो ठीक है, उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। अगर वो अमल नहीं करता है तो भी आपको सवाब मिलेगा। रज़ाए इलाही पाना है, लोगों को सीधी राह पर लाकर ही छोड़ना नहीं। लिहाजा मुबल्लिग नेकी की दावत देता रहे और नताइज अल्लाह ताला के हवाले कर दे। हमारा काम है कि आपको हम अच्छी बात बताते रहें, हिदायत का रास्ता देते रहें कि आप ये करो, ये करो, ठीक है। हमारा काम है आप तक बात पहुँचाना। अब उस पर अमल करना कैसे कराना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कराएगा वो उसके ऊपर है, क्योंकि हम तो आपको लेकर के घूम नहीं सकते कि नहीं आप करो ही, है कि नहीं। अब अल्लाह करम हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले इस दावत को
اور اللہ آپ کے دل میں وہ محبت ڈال دے کہ نہیں ہم کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم کو اچھا کرنا چاہیے، تو کوئی آٹومیٹک آپ کرنا شروع کر دو گے۔ اور کوئی کسی کے پیچھے دن بھر لے کر گھومتا رہے اس کو کہ نہیں تم کو یہ کرنا ہے کہ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھیں کہ ہم تو اتنا کر رہے ہیں، ہم اتنا دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اچھا بتا رہے ہیں، لیکن کو قبول نہیں کر رہا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ وہ دعوت اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ جو نیکی کی دعوت دے گا لوگوں کو تو کوئی عمل کرے گا نہیں کرنا، تو اس سے مایوس نہ ہو کہ ہم اتنا کر رہے ہیں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کل کون سی آئے؟ 6-7 رہے گی نا؟ 7 یا 8 رہے گی، 6 اور 7۔